Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, today we will read the second chapter of First Flight book, whose title is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Now before we begin the chapter, I'll give you an introduction. Actually, Nelson Mandela was a very famous personality and he belongs to South Africa. And South Africa is a country located in African continent. Long Walk to Freedom is the name of the autobiography written by Nelson Mandela, and Nelson Mandela was addressed as Madiba by a clan, Jaso, and he belonged to Thembu royal family and went to become the first president of South Africa. Nelson Mandela was the first elected president of South Africa. Nelson Mandela served prison for 27 years for the abolition of apartheid. Students, apartheid is a racial discrimination on the basis of color of skin. He came to known as the father of the nation in South Africa. 10th May dawned bright and clear. For the first days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Here, besieged by means to be surrounded closely by 10th May 1994 यही वो दिन था जिस दिन साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट चुने गए थे। इससे पहले साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड जैसी बहुत ही गंदी पॉलिसीज़ वहाँ के प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने अडॉप्ट कर रखी थी, जिसमें कि वो स्किन के कलर के बेसिस पे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते थे। और आज नेल्सन मंडेला के प्रयासों की वजह से ये अपार्थाइड जैसी पॉलिसीज़ ख़त्म हो गई थी और इसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उसके जो तमाम डिग्निटरीज़ हैं, तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस ख़त्म कर लिए थे। उन्होंने फिर से आज साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश की है और इसी वजह से आज इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में सब के सब नेल्सन मंडेला को बधाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और साउथ अफ्रीका के इतिहास में इससे बड़ी गैदरिंग वो भी इंटरनेशनल लेवल के डिग्निटरीज़ और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Building of Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये जो सेरेमनी है, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, ये प्रिटोरिया के बहुत ही खूबसूरत तरीके से बने हुए, वो भी सैंड स्टोन से बने हुए एम्फीथिएटर में हो रही थी। दशकों तक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज 10 मई 1994 को पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने थे। तो इससे पहले दशकों तक साउथ अफ्रीका अपार्थाइड जैसी पॉलिसी से ग्रसित था, जिसमें गोरे लोगों की सुपरमेसी होती थी। और आज पहली बार साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था। नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब कि जात, स्किन के रंग के बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन न करने वाली सरकार का गठन हो रहा था।
Amphitheater. Amphitheater means a building without a roof with many rows of seats rising in steps, typically of ancient Greece and Rome. एक खुला हुआ थिएटर जिस पे की छत नहीं होता है, लोग खुले में बैठते हैं, इसको हम एम्पी थिएटर बोलते हैं. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. On the podium, Mr. De Klerk was the first sworn in as Deputy President. इस खूबसूरत ऑटम डे के दिन मेरे साथ मेरी बेटी जनानी भी थी और पोडियम पे सबसे पहले मिस्टर डे क्लार्क ने शपथ लिया जो कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट होने वाले थे. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people. मिस्टर डे क्लार्क के बाद थाबू मवेकी ने शपथ ग्रहण किया और उनको डेप्यूटी प्रेसिडेंट का पदभार संभालना था. इसके बाद जब मेरी पारी आई तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज, जो भी रेगुलेशंस दिए हुए हैं उनके अनुरूप कार्य करने का प्लेज लिया. मैंने अपने देश के नागरिकों और साउथ अफ्रीका के रिपब्लिक का सम्मान करने का शपथ लिया. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो भी वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे और जो भी दुनिया आज के दिन को देख रही थी कि साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था, एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था, उनसे मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take the possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discriminations. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on as glorious a human achievement. Let freedom regain. God bless Africa. तो यहाँ पे कन्फर का मतलब होता है हियर या गिव. We who were outlaws means because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa. मतलब कि अपार्थीड पॉलिसी अडॉप्ट जो की गई थी साउथ अफ्रीका में डेकेड्स से, उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका से डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस तोड़ दिए थे. इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, अवरोधों से आज़ादी. डिप्राइवेशन, अ स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, किसी को उसके अधिकारों से वंचित कर देना, इसको डिप्राइवेशन बोलते हैं. डिस्क्रिमिनेशन, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव पूर्ण व्यवहार करना. दशकों से चली आ रही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसी पॉलिसी, जिसको कि अपार्थीड कहते हैं, इसकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी, साउथ अफ्रीका की जो ह्यूमैनिटी है वो इस कदर इवॉल्व हो गई थी कि इस नई मिली आज़ादी को, या इस नई मिली आज़ादी से जो एक नई आशा उत्पन्न हुई थी,
उस पर सभी लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अपार्थीड जैसी पॉलिसी की वजह से साउथ अफ्रीका को आउटलॉ समझा जाता था। आउटलॉ मतलब कि अपार्थीड जैसी पॉलिसीज़ की वजह से बाकी सारी कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका से डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस तोड़ लिए थे। वो सारी कंट्रीज़ आज फिर से यहाँ पे उनके डिग्निटरीज़, उनके जो वर्ल्ड क्लास लीडर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं और साउथ अफ्रीका को ये मौका मिला है कि उन डिग्निटरीज़, उन लीडर्स को होस्ट करें। We thank all of our distinguished international guests for having come to the possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for humanity and dignity. और इस तरीके से नेल्सन मंडेला उन सभी गेस्ट को थैंक्स बोल रहे हैं और ये कहते हैं कि ये जो एबॉलिशमेंट है अपार्थीड का और नॉन रेशियल गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है, ये दरअसल एक जीत है आज़ादी की, ह्यूमन डिग्निटी की, जस्टिस की और उन सारे कॉमन लोगों की और पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। और इस तरह से हमने आज अपनी राजनीतिक और मानसिक आज़ादी प्राप्त कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और इस तरीके से नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं आज ये ओथ लेता हूँ, मैं आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने लोगों को दशकों से चली आ रही गरीबी, डिप्राइवेशन, जिसमें कि उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, उन तमाम सफरिंग्स और जेंडर के बेसिस पे और तमाम अन्य कारणों की वजह से जो भेदभाव उत्पन्न किया गया था, उन सबको ख़त्म कर दूंगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और मैं साउथ अफ्रीका के लोगों को और यहाँ पे मौजूद तमाम डिग्निटरीज़ और वर्ल्ड क्लास लीडर को ये बताना चाहूँगा, ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि फिर कभी साउथ अफ्रीका में इस तरीके के शोषण, जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करता है, इस तरीके की चीज़ों को अनुभव नहीं करेंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और ये जो हमें ग्लोरियस अचीवमेंट प्राप्त हुई है, इसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा या इसे हम कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे। लेट फ्रीडम रीगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और इस तरीके से जो बड़ी मुश्किलों से, अथक प्रयासों की वजह से जो आज़ादी हमें मिली है, वो इसी तरीके से बनी रहे और भगवान की दृष्टि साउथ अफ्रीका पे बनी रहे और साउथ अफ्रीका के लोगों पे बनी रहे। ऐसा नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस chapter I will cover up in our next video. Till then, have a good day.